Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is Hamilton principle. Before this we did Lagrangian equation for conservative as well as for non-conservative system. And later on we did 3 or 4 problems which were the application of Lagrange equation. And today topic is about Hamilton principle. What state Hamilton principle? This principle states that motion of a conservative system, this principle states that motion of a conservative system from configuration T1 to T2 is such that the line integral I is equal to T1 T2 LDT. इससे क्या मुराद है, या डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा T1 T2 LDT इज इक्वल टू 0. इससे मुराद ये है कि इफ़ यू सी द Lagrange equation, in the Lagrange equation we were going to find the value at every instant. But here you see, for example, what this principle tells us. This principle tells us about the actual trajectory, actual path of the projected bodies. How? For example, this is point A and this is point B. A body can move from point A to B on this path, possible. This path is also possible. This path is also possible, and this one is also possible. So many paths you can consider it. But what is the actual path on which the projected body has gone through? Then if you find its actual path, by means of Hamilton principle, you can easily find what is the actual path of the motion of that body by taking its Lagrangian, which is the difference between kinetic energy and potential energy. For example, I am taking this path. I am taking, suppose, this path. But you will find that if you move from A to B on this path, then the difference between T minus V, if it is minimum or if it is maximum, then this will be the actual path covered. And you will find here and here and here that the difference between the kinetic energy and potential energy will neither be maximum nor minimum, in between. So you will choose that path on which the difference of kinetic energy T minus V at a time T1 to at a time T2 will have a minimum value or maximum value, which you simply call extremum. So that path is the actual path covered. If you take the variation, then calculate the variation of this action integral, that will be equal to 0. That will be equal to 0. Sune dobara. What this principle states? This principle states the motion of conservative system from configuration T1 to T2 is such that the line integral I is equal to T1 to T2 LDT, where L is a function here you see, and is Lagrangian L is equal to T minus V. So Hamilton principle is nothing but actually tells you which should be the actual path if a ball is tossed, for example, move from one point to the second point, if an object is thrown, or if a body moves from one point at time T1 to another point time T2. Suppose we are predicting this path,
we are predicting this path, this path, this path. But if you see that if you follow, you will see that suppose this path is the actual path. How I can say it actual path? I mean to say that f for the time average of the kinetic energy minus potential energy, if it gave you a minimum value or if it gave you a maximum value, or in simple word if you call it maximum value, then that path will be the actual path. अगर इस पाथ पे जाएं, इस पाथ पे जाएं, इस पाथ पे जाएं, ये आपको न मैक्सिमम देगा और न क्या देगा, मिनिमम देगा। अब अगर इसकी वेरिएशन ले लें डेल्टा आई, तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन इंटीग्रल। अगर आप इसका वेरिएशन ले लें तो कैलकुलस में वेरिएशन मिनिमम वैल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसलिए ये इक्वेशन जो है डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रल t1 to t2 L dt, यानी हमने इसकी समेशन ली है, इधर ली है डिफरेंस दोनों का, इधर ली है, इधर ली है, इधर ली है, इधर लिया, हर एक पॉइंट पे लिए, फिर सबका हमने क्या लिया, सम लिया, इंटीग्रल फॉर्म में लिया है। अगर ये हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो इसका वेरिएशन जो है डेल्टा आई वो 0 के बराबर होगा, या एक्सट्रीमम वैल्यू देगा वो 0 के बराबर होगा। हर केफ इसको करने के लिए कंसिडर अ लैग्रेंजियन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दैट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी इन टाइम। q dot is generalized velocity, q is generalized coordinate in time t. For example, you have taken a function which is taken a system which is a function of q in generalized coordinate, generalized velocity and time, such that L is equal to L q1 up to qn, q1 dot up to q1 n dot for t. Now taking the variation, delta L will be equal to delta L but delta q1 into del q1 up to delta qn L but delta qn to del qn plus delta L divided by del q1 dot into delta q1 dot up to delta L divided by delta qn dot into delta qn dot plus delta L by delta t into d2। चूँकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसलिए आपके पास ये टर्म किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसलिए इसको मैंने मार्क किया है 0। तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा j इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा L डिवाइड बाई डेल क्यू जे डेल क्यू जे प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू डॉट जे। अब यहाँ देखें, अगेन यू सी दिस इक्वेशन, डेल्टा L इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा L डिवाइड बाई डेल क्यू जे प्लस वही इक्वेशन जो है इसमें ये टाइम जो है इसको क्या लिया है, 0 के बराबर लिया है। और डेल्टा L इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा L डिवाइड बाई डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल और क्यू डॉट जे को इस शक्ल में लिखा डी बाई डी टी ऑफ क्यू जे, ये भी इसी के बराबर है। इस लैग्रेंज इक्वेशन इज d by dt of del L divided by del Q dot j minus del L divided by del Q j is equal to 0. This is a Lagrange equation for conservative system. और इसके अलावा आपके पास ये del L divided by del Q j ये इसकी भी बराबर है d by dt of del L divided by del Q dot j। आप इसी को इसी की बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन की जगह आप ये लिखेंगे, तो ये देखिए ये लिखा गया है, यानी डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा J इज इक्वल टू 1 अप टू n डी बाई डी टी ऑफ डेल L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू जे माइनस डेल्टा L की जगह वही वैल्यू डेल L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू सिग्मा डी बाई डी टी ऑफ क्यू डॉट जे, डी बाई डी टी ऑफ क्यू जे, क्यू डॉट जे नहीं क्यू जे। तो यानी मुराद ये है कि आप इसी क्वेश्चन को इसी शक्ल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब वो आपके पास इक्वेशन किस तरह बनेगा, j इज इक्वल टू 1 अप टू n डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे
इससे ये हटा दें माइनस डेल क्यू जे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसमें ये है कि आपके पास जो वैल्यू है ये आप इसको इसी शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की शक्ल में। तो अब आपने क्या करना होगा, इसी टर्म को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम टाइम t1 टू t2। इसको आपने फिर क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा टाइम t1 टू t2 जो है आपने इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो मुराद ये है कि अगर हैमिल्टन प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि यानी वो एक्चुअल आपको एक्चुअल इंटीग्रल के बारे में, एक्चुअल पाथ के बारे में कहता है कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल पाथ इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट ए सर्टन एंगल से एट इंटरवल बिटवीन टाइम t1 टू t2। अब वो इक्वेशन जो है इसकी इंटीग्रल, अब उसको यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा जी इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे। अब इसको थोड़ा वो करते हैं, इस इंटीग्रल को इधर लिखते हैं, ये वाला इधर नज़र नहीं आ रहा। तो ये इंटीग्रल देखें, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम, उधर नज़र नहीं आ रहा था, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम टाइम फ्रॉम t1 टू t2। तो ये आ रहा था इंटीग्रल t1 टू t2 एल डी टी, दिस वाज इक्वल टू सिग्मा j इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटीग्रल t1 टू t2 डी डेल क्यू जे। तो यह आ जाएगा इंटीग्रल t1 टू t2 डेल एल डी टी, ये आ जाएगा j इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे। ये आ जाएगा डेल क्यू डॉट जे, डेल क्यू जे इंटू t2, अगर इसको इंटीग्रेट करें माइनस डेल क्यू जे इंटू t1। चूँकि एंड जो है टाइम t1 इन t2 ये फिक्स्ड है, तो ये टर्म आपके पास किस के बराबर आ जाएगा, दिस टर्म विल बी गोज टू 0। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल t1 टू t2 डेल्टा एल डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वो है हैमिल्टन प्रिंसिपल है, या आप देख सकते हैं t1 टू t2 एल डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो गोया हैमिल्टन प्रिंसिपल में हमने क्या बात ही की, हैमिल्टन प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल है जो आपको एक्चुअल पाथ के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है? एक्चुअल पाथ, कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप टॉस करें, फॉर एग्जांपल इस तरह फेंक के, तो ये ए से बी पॉइंट के टाइम t1 टू t2, what should be the actual path covered by this ball or this object or so on। तो आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि इसकी हर जगह
फॉर एग्जांपल बॉडी की मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कवर दिस पाथ और दिस पाथ, सपोज हर एक पाथ जो है पॉसिबल है, लेकिन आपके पास एक पाथ इस तरह होगा जो कि एक्चुअल पाथ होगा, जिसको हम कहते हैं लीस्ट एक्शन, जिसको हम कहते हैं एक्शन इंटीग्रल आपने इसका लेना होगा। वो किस तरह, आपने लेग्रेंजन L इज इक्वल टू टी माइनस वी लेना होगा, इसकी टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इधर ले लें, ये पाथ ले लें, ये इस पाथ पे ले लें, इसी पाथ पे ले लें, इसी पाथ पे ले लें। आप देखेंगे कि आपके पास एक पाथ इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये पाथ मेरे पास है कि अगर मैं इस पे इसकी जो वो है टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक, अगर मैं इसकी वो ले लूँ, इंटीग्रल ले लूँ इस एक्चुअल पाथ की, अगर ये वैल्यू जो है एक्शन इंटीग्रल मेरे पास क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, तो वो पाथ जो है दैट विल बी द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। बाकी पे ये न कम होगा न ज़्यादा होगा, इन बिटवीन होगा। तो इसलिए इसको हम यूँ लिखते थे कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल एल डी टी, दिस वाज द एक्शन इंटीग्रल। अगर हम इसकी वेरिएशन ले लें तो इंटीग्रल एल डी टी दैट वाज इक्वल टू 0। तो इसको अभी हमने प्रूव किया कि किस तरीके से आता है। थैंक यू।